me, Kaushik, Army Public School, Meerut, Kent, is going to present the chapter today, that is demand. This is a very important chapter in today's scenario because until and unless there is a demand in the country, anything is not produced. So demand is very important. So when we talk about the demand, there are different types of commodities. Maybe we can say them goods and services also. So there are too many in the market. So we have to make the choices among those goods, what we have to purchase, what we cannot afford. So the things what we can purchase or we can buy in the given prices with the given income, that is all demand. And the things which we are not able to purchase or which do not come in my affordable range, then it is only my desires. So as income is depending upon the money availability with me, the price of the commodity, the types, the substitute goods in the economy. So all over, everything is decided just only for the demand. So now I am starting my presentation. So this is what I am going to start. The topic today is demand. Yes. Now come next. So this is the introduction portion what I have told you right now, that we have already studied about the needs and wants in the previous chapters what we have done, and that depends upon my purchasing power. That purchasing power I told you that whether I am able to afford the goods or not, यानी कि मेरे पास उतना पैसा है अपनी wants को पूरा करने के लिए या नहीं. मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज हैं, सो वी हैव टू मेक अ चॉइस अमंग दैम. सारी कमोडिटीज मेरे लिए नहीं है. कुछ कमोडिटीज हैं जिन्हें मैं खरीद सकती हूँ, उनकी चॉइस करनी पड़ती है, मुझे चॉइस करनी पड़ती है जो मेरी रेंज में आता है. सो जस्ट मेकिंग अ चॉइस इज नॉट इनफ. It also we have to make the I have to have certain amount of money also for that. So overall my purchases of purchasing a commodity is based on, first is the money. I should have money, that much money for which I can pay for the commodity, and that commodity should be my liking. That should be, I should like that commodity. Until and unless I'm not going to like that commodity, why I'm going to purchase it? So the first thing is that that commodity what I'm going to purchase should be my liking. Then I have to ask the price from the shopkeeper, and then according to that price I should have the money. So overall, so many things are there that decides how the money, how the demand is done. So in this chapter we are going to involve all those things which are required for the study of demand. So this is the objective of this chapter. After completing this chapter, you will be able to answer these questions, that is explain the concept of demand, differentiate between individual demand and market demand of a commodity, discuss the factors affecting individual demand. It can be individual demand, also market demand. State the law of demand and establish relationship between price and quantity demand. Yes, sir. Yes. So this is the meaning of demand. So meaning of demand, for that I am taking an example here. Suppose
Suppose Varsha went to the market last week and made the following purchases for the week for herself. I am taking an example here of Varsha, that last week she went to the market to purchase certain thing for herself. 1 kg of rice at rupees 25 per kg, zero point 0.5, that is half kg of arhar dal at rupees 68 per kg, 1 kg of wheat flour at rupees 24 per kg, 2 kg of mangoes at rupees 50 per kg. So in this example you have to see that what are the main important things what we are going to discuss for this demand. When one purchase one person, that is Varsha we are talking about, purchases a good in the market, she has to pay. What she has to pay? She has to pay the given price, a certain quantity she has to purchase for consumption, and during the given time period. I have highlighted the three words here, that is given price, certain quantity, and given time period. These all three things are required for a for a transaction or for purchasing any commodity, that to become a good. We too purchase many things in the economy. We desire to purchase many things. Sometimes we have money, but that commodity is not available. Sometimes we purchase the commodity, we have the money also, but the time duration is not given. So everything should be there. The price should be there, a quantity should be there, and the given time period should also be there. So definition, how the definition of the demand goes, the demand for a definition is defined as the quantity of the good purchased at a given price at given time. That means डिमांड क्या है, एक गुड्स को, यानी कि हम कुछ गुड्स खरीद रहे हैं. गुड्स क्या है, एक क्वांटिटी. ऐसे नहीं है कि हम जरूरत से ज्यादा सामान खरीदते हैं. हम अपनी जरूरत में, मुझे कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, 1 महीने में, 2 महीने में, जितने का मैं सामान लेना चाह रही हूँ, तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लाऊंगी. दूसरा, किस पे परचेज करूंगी, एट अ गिवन प्राइस. ऑब्वियस है, मैं पहले दुकानदार से कीमतें पूछूंगी. अगर वो कीमतें मुझे अच्छी लगेंगी या मेरे पास उतने पैसे होंगे तो मैं सामान खरीदूंगी. एंड एट अ गिवन टाइम, यानी कि टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़रूरी है टू स्टडी द डिमांड. कि एक समय में, यानी कि कोई सा भी समय है, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, कब, कोई एक समय में हम कुछ क्वांटिटी ऑफ गुड खरीदते हैं कीमतें देकर. सो आई हैव गिवन एन एग्जांपल इन द शेड्यूल, दैट इज द नेम ऑफ द गुड्स. अभी जो वर्षा ने सारा सामान खरीदा था वो मैंने आपको शेड्यूल में करके दिखा दिया है. राइस, अरहर दाल, wheat flour and mangoes, and the price is also given there, quantity is given there, and the time period is last week. It was written that the Varsha has gone to the market in the last week to purchase all these goods. So time duration is also there, because every week the price may float, they may change. कीमतें बदल सकती हैं, कीमतें बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं. तो इसीलिए टाइम ड्यूरेशन लिखना भी बहुत ज़रूरी है. अब दीज आर द 3 कंपोनेंट्स. मैंने आपको बताया, अगर हम किसी भी डिमांड पढ़ रहे हैं तो डिमांड के लिए, डिमांड डेफिनेशन के लिए 3 कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है. पहला, कीमतों का, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, कितनी मात्रा में आप एक सामान को खरीदते हैं, दैट इज क्वांटिटी. एंड तीसरा है, किस टाइम ड्यूरेशन में खरीदते हैं, यानी कि टाइम पीरियड डिफर भी करते हैं. अगर आप अगले महीने जाते हैं सामान खरीदने, तो हो सकता है वो सामान अवेलेबल ना हो सकता है वो सामान ज़्यादा कीमतों का हो सकता है वो सामान कम कीमतों का हो. तो टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़रूरी है. अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं. उस एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि हम क्या 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 कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं क्या ये डिमांड है या नहीं है. नितिन बॉट 2 pairs ऑफ शूज लास्ट मंथ. अब हमने पहले सेंटेंस में पढ़ा, नितिन बॉट 2 pair ऑफ शूज, 2 पेयर ऑफ शूज लाया है लास्ट मंथ. लेकिन यहाँ हमने शूज की कीमत नहीं लिखी, इसीलिए ये स्टेटमेंट अपने आप में डिमांड डिफाइन नहीं करता. सेकेंड, मिस्टर जाफरी परचेज 5 kg ऑफ एप्पल एट ₹40 पर kg. अब 5 kg एप्पल उसकी क्वांटिटी हो गई, 40 रुपीज पर kg प्राइस हो गया. लेकिन जाफरी ने कब खरीदा, टाइम ड्यूरेशन इज नॉट मेंशन्ड हियर. अगेन ये सेंटेंस भी डिमांड डिफाइन नहीं करता. द नेक्स्ट इज मिस हरमित कौर पेड ₹25 पर लीटर फॉर मिल्क लास्ट मंथ.
Now this statement is showing the price of that is 25, that is per liter. Month was also there last month, but how much quantity Hermit is purchasing, it is not mentioned. So all these three statements what we are studying here is missing one or the other thing. एक ना एक चीज इसमें गायब है. पहले वाले में आपने देखा कि उसमें कीमतें गायब थी, दूसरे वाले में आपने देखा समय गायब था, और तीसरे में आपने देखा क्वांटिटी गायब थी. इसीलिए हमें डिमांड पढ़ने के लिए तीनों चीज की जरूरत पड़ती है, और इसलिए हम दोबारा डिफाइन करते हैं कि डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड as the quantity of the good purchased at a given price at given time. So this is the proper definition of demand. कि demand for a good क्या है? That is कितनी quantity आप purchase करते हैं एक दी हुई कीमत पर और at a given time. हम बार बार दी हुई कीमत क्यों कहते हैं? जैसे सोचो अगर मैं बाजार गई और 50 रुपए किलो मैंगो है, तो अगर 50 रुपए किलो मैंगो बोला मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मैं अकॉर्डिंग टू दैट अपनी क्वांटिटी कम कर सकती हूँ. जरूरी नहीं है कि 1 किलो ही लूँ, क्योंकि 50 रुपए मेरे पास नहीं है, तो मैं आधा किलो कर सकती हूँ, मैं 250 ग्राम कर सकती हूँ. तो दैट डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं अपनी पास जो मनी है उसमें कितनी क्वांटिटी खरीद सकती हूँ, क्योंकि प्राइस गिवन है. कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड डिजायर. जब हम बात करते हैं डिमांड और डिजायर की, तो जिन चीजों को हम खरीद लेते हैं, यानी कि जिन चीजों को खरीदने की हमारी कैपेसिटी है, क्षमता है, यानी कि मेरे पास चॉइस भी है मुझे क्या खरीदना है, डिमांड, और मेरे पास की उतना अमाउंट भी है, यानी कि इनकम भी है, और मेरे पास उतनी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम भी है. अपने आप में मैं उन चीजों को अगर खरीद पाती हूँ तो वो डिमांड, अगर मैं खरीद नहीं पाती हूँ तो डिजायर. कोई भी मेरी चॉइसेस, कोई भी मेरी नीड्स, मेरी वांट्स, मेरी रिक्वायरमेंट्स, मेरी लाइकिंग, तब डिमांड बनती है जब मैं उसे खरीद लेती हूँ. अगर मैं उसे खरीद नहीं पाती हूँ तो दैट इज डिजायर. एनीथिंग विच यू कैन परचेज एट अ गिवन प्राइस इज कॉल्ड डिमांड. यानी कि जो भी चीज मैं खरीद सकती हूँ एक गिवन प्राइस पर, उसे कहते हैं डिमांड. जैसे आई परचेज 2 kg of mangoes at ₹50 per kg last week is demand. यानी कि मैंने पिछले हफ्ते है ना 2 kg मैंगो खरीदे ₹50 पर kg पर, तो मेरे अपने आप में ये डिमांड है. लेकिन अगर मैं कह रही हूँ जिस चीजों को मैं खरीद नहीं सकती, विच यू कैन नॉट परचेज इज डिजायर, जिसे मैं खरीद नहीं सकती उसे डिजायर कहते हैं. एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू गो टू लंडन बट आई डू नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट टू परचेज टिकट. अब मुझे लंदन जाने का दिल है, लेकिन उतना पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं उसके लिए पासपोर्ट, वीजा या टिकट खरीद सकूं, तो वो क्या बन गई, मेरा डिजायर. तो डिमांड सिर्फ वही होती है जिन्हें हम खरीद पाते हैं, और डिजायर वो जो हमारी सिर्फ चाहते हैं. यानी कि डिमांड मार्केट इफेक्ट करती है, लेकिन डिजायर्स मार्केट इफेक्ट नहीं करते. आप जो डिमांड करते हैं तो उतना पैसा मार्केट में आ जाता है, और एक सामान या जितनी क्वांटिटी आपने खरीदी है मार्केट से कम हो जाती है. लेकिन डिजायर्स मार्केट इफेक्ट नहीं करते, आप कुछ भी चाहते रहो, कुछ भी लेते रहो. नेक्स्ट, these are certain factors affecting individual demand. हम factors affecting individual demand पढ़ रहे हैं. हम factors affecting individual demand में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कुछ terms, जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड. पहले मैं आपको क्लियर करूं कि व्हाट इज एग्जैक्टली इंडिविजुअल डिमांड इज. इंडिविजुअल डिमांड क्या है कि एक व्यक्ति की डिमांड, एक व्यक्ति की डिमांड. अब वो एक व्यक्ति कौन है, वो मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है. तो एक व्यक्ति की डिमांड यानी कि एक व्यक्ति कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड एक प्राइस पर, गिवन प्राइस पर और एक गिवन टाइम ड्यूरेशन में खरीद रहा है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड. अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड, मेरी डिमांड को कोई ना कोई अफेक्ट तो करता होगा. जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल दो कि अगर 50 रुपए मैंगो बढ़कर 100 रुपए हो जाएंगे तो मैं नहीं खरीद पाऊंगी, क्योंकि मैं पहले ही 50 रुपए में ही आधा किलो खरीद पाती थी. अब वो 50 से 100 रुपए हो गए तो मेरी डिमांड कम हो गई, मेरी तो डिमांड ही खत्म हो गई. तो मेरी डिमांड किन चीजों से अफेक्ट होती है, किससे मेरी डिमांड बढ़ती है, किससे मेरी डिमांड
कम हो जाती है या किससे मेरी डिमांड ही बदल जाती है, यानी कि मैं वो चीज़ ही नहीं खरीदना चाहती। क्यों? क्योंकि वो मेरी कीमत है मेरे पास पैसे जो है उससे ज़्यादा है। तो डिमांड जब अफेक्ट करती है, मेरी डिमांड को अफेक्ट कौन कौन करता है? सबसे पहले करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कीमतें, मतलब यानी कि कमोडिटी की कीमतें मेरी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। दूसरा क्या है? दैट इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज क्या है? यानी कि जो सामान मैं खरीद रही हूँ उसके सब्स्टिट्यूट्स भी मार्केट में हैं। जैसे अगर मैं दुकानदार के पास जाऊं और मैंने उससे कहा कि मुझे चावल दिखा दो, तो कई बार दुकानदार भी तुम्हारे सामने ऑप्शन रख देता है कि बासमती चावल दिखाऊं, है ना, 40 रुपए वाला चावल दिखाऊं या 30 रुपए वाला चावल दिखाऊं। नाउ यू हैव टू मेक द चॉइसेस। कैसे बनाओगे चॉइसेस? कि आपके पास जितने रुपए हैं उसमें आप कौन सा चावल खरीद सकते हो। तो अपने आप में सब्स्टिट्यूट्स हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा लूंगा या कौन सी लूंगी। क्यों? क्योंकि उस उतना ही मेरे पास पैसे हैं। तीसरी चीज करती है मेरी इनकम। जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं डिमांड बढ़ा सकूंगी, सभी चीज की डिमांड बढ़ा सकूंगी, सिर्फ ये नहीं कि चावल ही ज्यादा खरीद सकूंगी। मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं कई सारे सामान और ज्यादा खरीद सकती हूँ। हो सकता है पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजें भी ले सकती हूँ। तो मेरी इनकम के बढ़ने से भी मेरी डिमांड अफेक्ट होती है। और चौथा है कि मेरे टेस्ट पे, अगर मेरा टेस्ट है किसी चीज का, कई बार ऐसा होता है जैसे आप खेल कूद कर आते हो तो आपका दिल करता है कि बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक पी ले, तो आपका टेस्ट वो ऐसा हो गया। और अगर थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद आपका दिल नहीं करता कि आप कोल्ड ड्रिंक पिए, तो टेस्ट बदल गया तो डिमांड भी बदल जाएगी। तो टेस्ट के हिसाब से भी डिमांड बदलती है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब आप स्लाइड्स पे देखिए। So these are four factors what we are going to study. That is the price of the commodity, price of related goods, income of the buyer and taste and preference of the buyers. तो अब हम सब पढ़ेंगे एक एक कर कर। One by one we will study all the factors. हम एक एक कर इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला हम करते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसे हम प्रेजेंट कर, मतलब हम एक एब्रीवेटिव से लिखते हैं ज़्यादातर अपने फॉर्मूलेस लिखने के लिए। तो एक एब्रीवेशन यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, दैट इज़ PN, price of the normal commodities. So PN, that is price of the commodities generally we talk about. So we go to market to purchase thing, so we ask price from the seller. जब भी हम बाजार जाएंगे तो हमारा एक काम क्या है कि हम कीमतें पूछेंगे। If the prices are high, we'll purchase less. If the prices are low, we purchase more of that commodity. अभी मैंने आपसे कहा कि अगर 50 रुपए मैंगो हैं तो ऑटोमेटिकली मैं क्या करूंगी, आधा किलो खरीदूंगी। लेकिन अगर कीमतें कम हो जाती हैं, 25 रुपए हो जाती है कीमतें, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकती हूँ। हो सकता है मैं 1.5 किलो खरीद लूँ, हो सकता है मैं 2 किलो खरीद लूँ। तो अपने आप में प्राइस के बढ़ने से मेरी क्वांटिटी ऑफ परचेजिंग अ कमोडिटी इज डिक्रीजिंग, दैट इज लेस। इफ द प्राइस फॉल्स, तो अपने आप में मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ परचेजिंग अ कमोडिटी, एक ही कमोडिटी मैंगो की ही बात करते हैं कि अगर प्राइस बढ़कर 50 से 100 रुपए हो जाते हैं तो मेरी डिमांड लेस हो जाएगी। यानी कि मैं क्वांटिटी जो परचेज कर रही हूँ एक कमोडिटी की, वो कम हो जाएगी। और प्राइस अगर कम हो जाते हैं तो एक उसी सामान की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो प्राइस की वजह से क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ता है कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदूंगी या कितनी ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब कितनी कम क्वांटिटी खरीद। तो इसका रिलेशनशिप कैसा बन गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी और डिमांड का, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। वो इनवर्सली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड फॉल हो जाती है और प्राइस के लो होने से डिमांड बढ़ जाती है। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट कम प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इजीली यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है टी एंड कॉफी का, सब्स्टिट्यूट गुड्स इन्हें कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड टुगेदर in satisfying a particular want.
तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है कि एक के अगर एक चीज नहीं है तो चलो दूसरी चीज ले लेते हैं, किसी की एब्सेंस में किसी को यूज करना, उसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो जैसे टी एंड कॉफी एग्जांपल लिया है, अगर प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, क्योंकि वैसे भी नॉर्मल लाइफ में आप देखो टी और कॉफी की कंपैरिजन में कॉफी एक्सपेंसिव है कंपैरेटिव टू टी, तो अगर कॉफी की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो जब कॉफी की कीमतें बढ़ जाएंगी तो अब कॉफी अफोर्डेबल रेंज से बाहर हो गया, इसीलिए डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, टी की बढ़ जाएगी। अब डिमांड टी की बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड ऑफ टी विल इंक्रीज। तो इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर टी विल ऑल्सो इंक्रीज। दूसरा हम लेंगे, अगर कॉफी की कीमतें गिर जाती हैं यानी कि कॉफी सस्ती हो जाती है, तो लोगों को फिर कॉफी पीने का दिल कर देगा, क्योंकि चाय की कंपैरिजन में कॉफी का टेस्ट सबको अच्छा लगता है, सो दे वुड लाइक टू हैव मोर ऑफ कॉफी, तो इसलिए डिमांड टी की क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो अगर प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ती है तो डिमांड ऑफ टी बढ़ जाते हैं, अगर प्राइस ऑफ कॉफी फॉल हो जाती है तो डिमांड ऑफ टी घट जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि टी और कॉफी के रिलेशनशिप में अगर हम एक का प्राइस तो एक ही क्वांटिटी डिमांड पढ़ते हैं, अगर हम प्राइस कॉफी का पढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड टी की ले रहे हैं, और दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट, क्योंकि अगर प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी बढ़ती है, अगर प्राइस ऑफ कॉफी घटते हैं तो डिमांड ऑफ टी भी घट जाती है, और इसीलिए दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ कम टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने ये गुड्स लिए जो इकट्ठे यूज होते हैं, जैसे टूथपेस्ट और ब्रश दोनों इकट्ठे यूज होते हैं, ऐसी कार एंड पेट्रोल इकट्ठे यूज होते हैं। अब प्राइस पेट्रोल के ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, ऑटोमेटिकली कार एक्सपेंसिव है, उसकी तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, लेकिन प्राइस जो फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग है वो सबसे ज्यादा मार्केट में पेट्रोल के है। तो वी आर गोइंग टू टेक द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज डिमांड ऑफ कार। डिमांड का मतलब यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन ऑफ कार। अगर पेट्रोल हाई हो जाते हैं और मेरे पास कार है ही नहीं तो वो तो मुझे इफेक्ट करेगी नहीं, लेकिन अगर मेरे पास कार है तो कार का यूज करना, मैंने कितना यूज करूंगी वो भी डिमांड का पार्ट है, कंजम्पशन भी डिमांड की है। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर बढ़ते हैं तो मैं डिमांड ऑफ कार कम कर दूंगी, यानी कि कार सिर्फ वहां जाया करेगी जहां ज्यादा जरूरत हो और एक समय में ज्यादा लोगों को जाना हो। अगर प्राइस पेट्रोल के कम हो जाएंगे तो डिमांड फॉर कार, हम ज्यादा घूमने फिरने में इस्तेमाल करने लगेंगे कार को, तो कार का कंजम्पशन यानी कि कार की डिमांड बढ़ जाएगी। सो दे आर inversely related to each other. If the price of petrol increases, the quantity demand of car will decrease, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। If the price of petrol falls, then the demand of car will increase, क्यों, क्योंकि अब पेट्रोल सस्ता हो गया। So they are inversely related to each other. Next come that is income of the buyer. Now here we are going to study that income वैसे directly affect डालती है, जब भी इनकम बढ़ती है तो हमेशा हमारी डिमांड बढ़ जाती है। अगर हम पहले से कुछ और चीजें खाते आए हैं, सो एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, पढ़ाते समय भी बताऊंगी आपको एग्जांपल, कि अगर सोचो कि अगर मैं पहले से हम एक नॉर्मल जैसे पैंट में लगने वाले कपड़े पहनते थे, अगर हमारी तनख्वाह बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है, तो हम थोड़ा कोशिश कर सकते हैं कि ब्रांडेड चीजें पहनने लगे, तो हम पुरानी जो चीजें खरीदते थे उन्हें छोड़कर हम अपनी डिमांड, नई चीजों की डिमांड बढ़ा सकते हैं। तो इनकम के बढ़ने से जनरली डिमांड बढ़ती है, लेकिन हमने यहाँ भी दो तरह के गुड्स पढ़ रहे हैं, एक नॉर्मल गुड्स पढ़ रहे हैं, एक इंफीरियर गुड्स पढ़ रहे हैं, और उन दोनों पर उनका इफेक्ट पड़ेंगे। तो नॉर्मल गुड्स पे इफेक्ट क्या है कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका तनख्वाह बढ़ती है तो इनकम भी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। यानी कि जो भी चीजें मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, जो भी चीजें इनकम बढ़ने से मैंने खरीदी हैं, जैसे पहले हम हाथ से पीसा करते थे चटनी और मसाले ये सब, लेकिन अब मेरी तनख्वाह बढ़ गई तो हम वो एफर्ट्स क्यों करें, तो हमने क्या करा, मिक्सी खरीद ली। तो इनकम बढ़ने से हम एक नई चीज खरीद लाए, यानी कि हमारा, क्योंकि इनकम बढ़ गया तो हमारा स्टैंडर्ड स्टेटस भी चेंज हो जाना चाहिए।
तो नॉर्मल है ये, इसीलिए हम, क्योंकि नॉर्मल है, बिहेवियर नॉर्मल है कि जब भी इनकम बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली हम अपनी पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज करते थे तो हम कलर टीवी खरीदना यूज कर देंगे। हम अभी तक रोज लोकल प्रोड्यूसर्स के कपड़े पहनते थे, हम ब्रांडेड कपड़े पहनने लगेंगे। तो ये नॉर्मल है कि जब भी हमारी तनख्वाह बढ़ेगी तो हम अपना जो भी चीजें परचेज करेंगे या खरीदेंगे वो इंक्रीज इन डिमांड कहलाती है। तो नॉर्मल गुड्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जो भी चीजें तनख्वाह बढ़ने से हम चेंज कर देते हैं या हम परचेज करते हैं उन्हें हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। और इंफीरियर गुड्स किन्हें कहते हैं? जब हमारी तनख्वाह बढ़ती है और हम इन्हें छोड़ देते हैं उन्हें कहते हैं इंफीरियर गुड्स। जैसे अब अगर आप बड़े हो जाओगे और कॉलेजों में चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दोगे, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी? इंफीरियर गुड बन जाएगी। फिर आप यूनिफॉर्म पहनना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप कॉलेजेस में आ जाओगे तो आप चाहोगे हम कलरफुल ड्रेसेस पहने। तो जिन कमोडिटीज को इनकम बढ़ने से हम छोड़ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स, और जिन चीजों को हम इनकम बढ़ने से खरीदते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स। कल हो सकता है, अभी जैसे हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो मेरी तनख्वाह कल और बढ़ जाएगी तो मैं आईफोन पे आ जाऊंगी, और तनख्वाह बढ़ जाएगी तो मैं किसी और नए मोबाइल पे शिफ्ट हो जाऊंगी। तो ये नॉर्मल है कि जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती जाती है हम अपनी अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड स्टेटस करते रहते हैं, और जिन चीजों को हम छोड़ देते हैं उन्हें हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं। तो नॉर्मल गुड्स में बिहेवियर क्या है कि जैसे इनकम बढ़ती है डिमांड फॉर दीज गुड्स इंक्रीजेस, इसलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और इंफीरियर गुड्स में क्या है कि इनकम बढ़ने से जिन चीजों को हम छोड़ देते हैं यानी कि डिमांड डिक्रीजेस, इसलिए उसका रिलेशनशिप इनवर्स है। एंड द लास्ट कम्स टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड फैशन। हमारा टेस्ट जो है वो उसी के बेसिस पर हम प्रेफरेंस देते हैं, और प्रेफरेंस किसे देते हैं? जो फैशन में होता है चीजें। तो जो भी चीजें फैशन में है ऑटोमेटिकली हम उसे प्रेफरेंस देने लगते हैं और वही हमारा टेस्ट बन जाता है। तो टेस्ट और फैशन और प्रेफरेंसेस ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारी डिमांड को। सो डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीजेस विच आर प्रेफर्ड बाय द बायर्स और विच आर इन फैशन। तो जो फैशन में है उसे मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, और जो फैशन में नहीं है उसकी डिमांड घट जाएगी। आने वाले समय में मैक्सिमम लड़कियां जीन्स और टी शर्ट्स पहनना पसंद करती हैं। सो डिमांड फॉर जीन्स एंड टी शर्ट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन कंपैरिजन टू दैट इज सलवार कुर्ती। सो दे डू नॉट लाइक टू वेयर मोर सलवार कुर्तीज। दे फैशन अब किसका हो गया? जीन्स एंड टी शर्ट्स का हो गया। तो ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस क्या है कि जीन्स एंड टी शर्ट्स विल बी प्रेफर्ड मोर बिकॉज that is my liking, that is my taste. So according to the taste the demand increases. If that commodity is not preferred by me, that means the demand for that commodity decreases. So now come to the individual demand schedule. So I have told you I have told you what is individual demand. I have also told you the factors affecting individual demand. Now this is individual demand schedule. मैं जिन डिमांड जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया है अगर उसी लॉ ऑफ डिमांड को मैं टेबल फॉर्म में लिख दूं तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज शेड्यूल? दैट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन, यानी कि जो स्टेटमेंट हम कह रहे थे कि कीमतों के बढ़ने से है ना क्वांटिटी डिमांड घट जाती है, अगर मैं उसे टेबल फॉर्म में लिख दूं तो वो बन जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट quantities of commodity demanded at different prices by an individual buyer. मैंने यहाँ prices of mangoes ले लिए हैं। प्राइस ऑफ मैंगोज देखिए आप वो गिरते जा रहे हैं 60, 50, 40, 30, लेकिन क्वांटिटी डिमांड उसकी कंपैरिजन में क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहले 1.5 थी, फिर 2 हो गई, फिर 2.5 हो गई, फिर 3 हो गई। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट शेड्यूल दैट एज द प्राइस फॉल्स द डिमांड इंक्रीजेस। कम टू द लॉ ऑफ डिमांड। मैंने अभी आपसे कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड को अगर मैं डिमांड फॉर्म में टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करूं तो दैट इज कॉल्ड एज एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सो इट इज क्लियर दैट लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स its quantity demand increases, and if price of commodity rises its quantity demand falls. That is we are keeping other factors constant here. हम 4 factors पढ़ रहे थे, PN, PR, Y, T। हम PR, YT को चेंज नहीं होने दे रहे।
क्योंकि अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज होंगे तो मैं वो कमोडिटी छोड़कर हो सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स पे चली जाऊं। अगर इनकम चेंज हो रहे होंगे तो हो सकता है मैं वो डिमांड ही ना करूं, उस कमोडिटी की कोई नई डिमांड कर लूं। वो अगर मेरा टेस्ट चेंज हो सकता है तो मैं वो डिमांड उस कमोडिटी की डिमांड छोड़कर कोई और दूसरी कमोडिटी पसंद कर सकती हूँ। तो इसीलिए हमने इन लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के लिए इन तीनों फैक्टर्स को कांस्टेंट माना है और कहा है कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी और अगर प्राइस घटते हैं तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिकली वंस अगेन आई एम टेलिंग इट, द प्राइस ऑफ डिमांड इज गिवन एज if the price of the commodity falls, its quantity demand increases, and if the price of the commodity rises, its quantity demand falls, keeping other factors constant. So again, there is an inverse relationship between the price of a commodity and its quantity demanded. Now this can be seen with the help of a graphical presentation, that is a diagrammatic presentation of law of demand also. So we can present it. We have already studied the example of the Varsha. She has purchased the mango in different forms. I can show you once again the schedule here. This is the schedule what I have made, purchasing the mangoes by the Varsha, and if I plot the schedule I get the curve, demand curve like this. So this is the demand curve. On y-axis we have taken prices, on x-axis we have taken quantity demanded. If the price keeps on increasing, the quantity demand keeps on decreasing. At rupees, if it is 4.5, the demand is your demand is nearly to 2. If your price falls to 4, it increases to 2.5. If it falls to 2, your quantity demand increases to 4, and so on. तो जैसे जैसे कीमतें बढ़ती चली जाती हैं क्वांटिटी कम होती जाती है, जैसे जैसे कीमतें नीचे आती जाएंगी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, showing the inverse relationship between the two. Now come to the next, that is the shape of individual demand curve. अब जो हम शेप पढ़ रहे थे, अभी हमने शेप पढ़ा, इस शेप को हम कहते हैं, अगर आप इस शेप को पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, हम इस शेप को कहते हैं दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसे हम पढ़ते हैं ना डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तक जा रहा है कर्व। तो इसकी शेप डाउनवर्ड क्यों है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की शेप डाउनवर्ड ही क्यों है, तो हम वो पढ़ रहे हैं डाउनवर्ड क्यों है। तो इसके लिए हम यहाँ 3 चीजें पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, मैंने वैसे आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन फॉर्म में भी दिया है, व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अदरवाइज द अदर हेडिंग इज ऑल्सो देयर कि व्हाट इज द शेप ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। व्हेन वी से दैट इट इज फॉलिंग, व्हेनेवर द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड फॉल्स। क्यों फॉल हो जाती है, कीमतों के बढ़ने से डिमांड क्यों गिर जाती है, हम एग्जैक्टली ये पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें पढ़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो है, अपने आप में बेशक आपको इसमें हेडिंग नहीं दिया गया है आपके कोर्स में, लेकिन इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से पढ़ते हैं। ये कंसेप्ट जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट है। व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, satisfaction derived from successive units of a commodity goes on diminishing. अगर हम एक कमोडिटी को ज्यादा मतलब कई बार खरीद लेते हैं तो हर आने वाली सक्सेसिव मतलब एडिशनल, यानी कि एक से दूसरी, तो एडिशनल यूनिट मुझे कम और कम सेटिस्फेक्शन देती है। यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, कम कम होता चला जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया कि एक हंग्री पर्सन है, मतलब कोई भी भूखा है, जैसे आप भाग कर खेल कर आते हो या आप बहुत घर पर जाते हो तो उस समय आपको बहुत तेज भूख लगी होती है स्कूल से जाने के बाद, तो उस समय आपको अगर पहली रोटी दी जाती है खाने के लिए तो वो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। क्यों? क्योंकि आप बहुत भूखे थे। लेकिन सेकंड, जिस रफ्तार से आप पहली रोटी को खाते हो क्योंकि आप बहुत भूखे हो, तो उस रफ्तार से आप सेकंड रोटी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि पहली रोटी से थोड़ी सी भूख कम हो गई, एंड दैट भूख इज माय सेटिस्फेक्शन। वो जो मेरी भूख है वो एक तरह का क्या है, सेटिस्फेक्शन है। वो सेटिस्फेक्शन मुझे दूसरी रोटी पर कम हो गया और तीसरी रोटी पे और कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ता जाएगा तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल भी कम होता चला जाएगा, एंड दस
इट फॉल्स, इट डिमिनिशेस। जो जैसे जैसे मैं नई एक के बाद एक दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी रोटी खाती जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल आने वाली हर एक रोटी से कम 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 होता चला जाएगा। तो फिर से अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं तो एक बार फिर दोबारा डेफिनेशन देखिए कि when more and more units of a commodity are consumed, satisfaction derived from successive units of the commodity goes on diminishing. तो if we get more satisfaction, he will be ready to pay more. अगर मुझे पहली रोटी पर सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली मैं उसके लिए पैसा देने को तैयार हूँ। यानी कि मैं अगर 2 रुपए में एक रोटी मिल रही है तो मैं तो सबसे पहले 2 रुपए दे दूंगी, पहले रोटी दे दे क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। तो हमें अगर सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली मैं उसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। लेकिन जिस चीज से अगर मुझे सेटिस्फैक्शन कम मिलता है तो मैं उसके लिए प्राइस लेस पे करना पसंद करूंगी, मैं उसे ज्यादा कीमतों पे खरीदना नहीं पसंद करूंगी। तो अपने आप पे दोबारा देखो, फिर से दोबारा देखो कि जिससे मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है मैं उसमें ज्यादा पे कर सकती हूँ, जिससे मुझे कम सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे मैं कम पे करना पसंद करती हूँ। तो ऑटोमेटिकली फिर से ये लॉ ऑफ डिमांड ही शो कर रहा है दैट इट मीन्स द कंज्यूमर विल बाय मोर। मैं तब ज्यादा खरीदूंगी when the prices are low and मैं तब कम खरीदूंगी when the prices are high, showing law of demand and thus the demand curve slopes downward from left to right. इसीलिए डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट अपने आप गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि मैं खरीदूंगी तब जब ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तब मैं कीमतें ज्यादा दूंगी, और अगर सेटिस्फैक्शन मेरा कम होता जाएगा तो मैं कीमतें कम देती जाऊंगी एंड thus again it leads to law of demand. दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे ये है अपने आप में कि अगर हम ये सोचकर देखो कि मैं बाजार गई, मैंने मैंगो खरीदे, अगर मेरी मैंगो की कीमतें 40 रुपीज पर केजी है तो मैंने 2 किलो मैंगो खाए। लेकिन अगर मैंगो की कीमतें घटकर 40 से 20 रुपए हो जाए तो अब मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? वो ज्यादा हो गई। यानी कि अब मैं उसी मतलब उतने अपने पास जो मेरे पास पैसे थे उन्हीं पैसों में अब ज्यादा मैंगो खरीद सकती हूँ। क्यों? क्योंकि कीमतें घट गई। तो आप खुद देखो जब कीमतें घट जाती हैं तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, यानी कि आप ज्यादा खरीदना पसंद करते हो। तो कीमतों के बढ़ने से आप कम खरीदते हो और कीमतों के गिरने से आपकी परचेजिंग पावर डबल हो जाती है। फिर ये घूम फिर कर किस पर आ गया? लॉ ऑफ डिमांड पर आ गया एंड thus लीडिंग टू डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड का हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहती है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड को घटना है और प्राइस के घटने से डिमांड को बढ़ना है और उसकी वजह से उसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग करवा रहे हैं। तो हम जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसे लॉ ऑफ डिमांड पर ला दे रहे हैं। तो इसमें भी हमने यही कहा है कि अगर मैं 40 रुपए मैंगो था किलो मैंगो थे तो मैंने 2 किलो मैंगो खरीदे, लेकिन अगर 40 रुपए से 20 रुपए किलो मैंगो हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मैं तो डबल ऑफ इट खरीदूं, यानी कि 4 केजी खरीद सकती हूँ। तो मेरे कीमतें गिरने से ही तो डिमांड बढ़ गई। तो ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू लॉ ऑफ डिमांड एंड thus it is sloping downwards. Next, the third point is, this is the last one and it is called as the substitution effect. हम इसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में पढ़ते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आप पढ़ते हो कि एक चीज है एक्स कमोडिटी है वाई कमोडिटी है, दो एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी सब्स्टिट्यूट है, यानी कि एक्स की जगह वाई ले लो, वाई की जगह एक्स ले लो। यहाँ पे एग्जांपल मैंने कोक और पेप्सी का ले रखा है, कोक और पेप्सी का। अगर अभी हम सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़कर आए, सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने अभी जो पढ़ा था टी एंड कॉफी, तो हमने मैं उसे रिकॉल करती हूँ फिर मैं आपको कोक और पेप्सी से समझाऊंगी। तो उसे रिकॉल करो कि टी एंड कॉफी में कि कॉफी की कीमतें बढ़ने से टी की डिमांड बढ़ रही थी, कॉफी की कीमतें बढ़ने से टी की डिमांड बढ़ रही थी। यही सब्स्टिट्यूट गुड्स में पढ़कर आए हम, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब ध्यान से देखो उनमें क्यों रिलेशनशिप डायरेक्ट आ रहा था। अपने आप में एक्स कमोडिटी भी लॉ ऑफ डिमांड पे काम कर रही थी और वाई कमोडिटी भी लॉ ऑफ डिमांड पे काम कर रही थी। जैसे अगर प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ रहे थे तो क्योंकि कॉफी महंगी हो गई तो कॉफी की डिमांड कम हो गई, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? टी। क्योंकि टी की कीमतें कॉफी से कम हैं इसीलिए टी की डिमांड बढ़ गई थी। तो दोनों अलग अलग अपनी अपनी जगह पर लॉ ऑफ डिमांड पे ही काम करती हैं। ये अलग बात है कि जब हम सब्स्टिट्यूट पढ़ते हैं तो हम एक की जगह दूसरा पढ़ते हैं। आ जाइए अब आपको के ऊपर। तो व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन इट्स सब्स्टिट्यूट।
यानी कि अगर एक प्राइस, एक कमोडिटी की कीमत बढ़ रही है, उसके सब्स्टिट्यूट की कीमत अगर मतलब सॉरी फॉल हो रही है, तो इतनी फॉल हो गई होगी कि उसकी सब्स्टिट्यूट जो कमोडिटी है उससे भी सस्ती हो गई होगी, तभी तो वो उसकी डिमांड करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ कोक फॉल्स, अगर कोक की कीमतें गिर जाती हैं, किसकी कंपैरिजन में? पेप्सी की कंपैरिजन में, यानी कि पेप्सी से और ज्यादा सस्ती हो गई कोक, तो people will start buying coke in place of Pepsi, so leading to more demand of coke when its price falls. कोक की डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि कोक की प्राइस कम हुए। इस ऑटोमेटिकली ये भी अपने आप को क्या दिखा रहा है? लॉ ऑफ डिमांड दिखा रहा है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड के जब भी हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड है, तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि कीमतों के गिरने से डिमांड बढ़ना चाहिए। So leading to more demand of coke when its price fall, it will lead to downward slope of the demand curve. तो ये था हमने जो पढ़ा कि अपने आप में कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड कर्व की शेप ऐसी क्यों है कि इंडिविजुअल डिमांड की शेप हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। तो पहला हमने उसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के कंसेप्ट से पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर अगर एक कमोडिटी की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो मेरी रियल इनकम या परचेसिंग पावर, यानी कि इनकम इफेक्ट, उसे हम कहते हैं इनकम इफेक्ट, यानी कि मेरी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। और परचेसिंग पावर जब बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली कीमतों के कम होने से परचेसिंग पावर बढ़ी, और परचेसिंग पावर बढ़ने का मतलब डिमांड बढ़ी तो लॉ ऑफ डिमांड आ गया एंड डाउनवर्ड स्लोप हो गई। तीसरा हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में पढ़ा कोक और पेप्सी का, कि अगर कोक की कीमतें पेप्सी से कम हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कोशिश करते हैं, मतलब हम तो कंज्यूमर हैं, जिसकी भी कीमतें कम हो जाती हैं हम तो उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। कोक की डिमांड क्यों बढ़ी थी? क्योंकि उसकी प्राइस घटी थी। अगेन इट इज वर्किंग ऑन लॉ ऑफ डिमांड एंड दस इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ कम्स नेक्स्ट इज, अभी हमने ये सब पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड का, अब हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड में कि मार्केट डिमांड क्या है। मार्केट डिमांड क्या है कि वैसे तो लग रहा है जैसे डिमांड मार्केट की है, नहीं, ये क्या है? डिमांड है इंडिविजुअल्स की है, लेकिन हम इन्हें टुगेदर ले लेते हैं, यानी कि सम अप कर लेते हैं। एक कमोडिटी को कितने कंज्यूमर चाहते हैं उनको एक साथ सम कर ले तो वो बन जाती है मार्केट डिमांड, यानी कि इट इज द एडिशन, इट इज द टोटल का मतलब यहाँ पे क्या है? इट इज द एडिशन ऑफ द quantity of commodity demanded by all the individual buyers in the market at the given price at given time is called market demand of that commodity. एक commodity को कितने consumers खरीदते हैं, जितने कंज्यूमर्स खरीदते हैं उन सब कंज्यूमर्स की जोड़कर कि उस कमोडिटी को टोटल कंज्यूमर्स कितने खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। जैसे मैंने आपको यहाँ शेड्यूल में दिखा रखा है, प्राइस ऑफ आइसक्रीम दिखाई है, प्राइस ऑफ आइसक्रीम, प्राइस उसे ए कंज्यूमर भी खरीद रहा है, बी कंज्यूमर भी खरीद रहा है। अगर हम बात करें मार्केट की तो हमने ए और बी कंज्यूमर को जोड़ दिया। देखो प्राइस ऑफ आइसक्रीम 1 2 3 4 बढ़ रही है, तो क्योंकि प्राइस बढ़ी तो डिमांड को तो घटना होगा। लॉ ऑफ डिमांड पे ही काम करते हैं हम ज़्यादातर, हम हमेशा लॉ ऑफ डिमांड पे काम करते हैं, हम अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलते बेटा। तो अपने आप में जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही है आइसक्रीम की, ए की डिमांड घट रही है, देखो 4 3 2 1, बी की डिमांड भी घट रही है 5 4 3 2, लेकिन ओवरऑल डिमांड अगर देखा जाए तो कीमतें बढ़ गई ना। देखो पहले एक कंज्यूमर 4 ले रहा था, दूसरे कंज्यूमर ने 5 लिया, तो एक रुपए पर 9 कंज्यूमर्स हो गए, यानी कि मार्केट डिमांड हो गई। मार्केट डिमांड कैसे निकाली? ए और बी को जोड़कर। तो ए और बी अगर ऐसी, अब मैं सी को भी ला दूं, एक और कंज्यूमर है वो आइसक्रीम लेने लगेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का बन जाएगा। तो मार्केट डिमांड क्या है? इट इज द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल बायर्स। इंडिविजुअल बायर्स की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, हर इंसान अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से चीजें खरीदता है, उन सबको एक ही कमोडिटी को खरीदने वाले सबको जोड़ लें तो उसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर्स, दैट इज द नंबर ऑफ बायर्स। मार्केट डिमांड में भी 3 फैक्टर्स पढ़ेंगे हम, जैसे हमने वहां पर भी फैक्टर्स पढ़े थे 4, दैट इज PN PR Y T। वहां हमने पढ़ा प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। यहाँ हम पढ़ेंगे 3, हम
दैट इज फर्स्ट इज नंबर ऑफ बायर्स। नंबर ऑफ बायर्स में क्या है, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर एक और आइसक्रीम वाला जोड़ दूं तो नंबर ऑफ बायर्स बढ़ेंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आइसक्रीम की डिमांड भी बढ़ गई, आइसक्रीम की मार्केट डिमांड बढ़ गई। तो अपने यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स भी मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं, यानी कि पहले से 2 लोग खरीद रहे थे, तीसरा बंदा भी आ गया तो और ज्यादा आइसक्रीम बिकने लग गई, तो मार्केट डिमांड ऑफ आइसक्रीम क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए। सो नंबर ऑफ बायर्स बाइंग अ कमोडिटी डिटरमाइंस डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन द मार्केट। नेक्स्ट आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ भी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ इस तरह से हुआ इकोनॉमी में कि ज्यादा से ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ इनकम का वो रिच के फेवर में हुआ है, यानी कि रिच पीपल्स की तरफ ज्यादा पैसा बटा है। डिस्ट्रीब्यूशन जब इकोनॉमी में होता है इनकम और वेल्थ का, तो ज्यादा से ज्यादा रिच क्लास के हाथ में पैसा आएगा, तो ऑटोमेटिकली अगर उनके फेवर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उनकी डिमांड, यानी कि डिमांड उनके जो रिच क्लास के लोगों की जो डिमांड है उनकी हायर हो जाएगी, यानी कि लग्जरी गुड्स, क्योंकि रिच क्लासेस लग्जरी गुड्स खरीदते हैं तो डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स विल बी हायर। और अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की तरफ फेवर में हो जाए तो ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर द कमोडिटीज बाय द पुअर, अब पुअर क्या है, नेसेसिटी गुड्स, वो तो सिर्फ नेसेसिटी गुड्स ही अफोर्ड कर पाते हैं, तो अगर उनकी इनकम, उनकी तरफ इनकम ज्यादा बढ़ती है, पुअर सेक्शंस में ज्यादा बढ़ती है इनकम, तो नेसेसिटी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर रिच सेक्शंस में होगी तो लग्जरी गुड्स की। तो मार्केट डिमांड कैसे इफेक्ट हो गया कि इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ इज मोर इन फेवर ऑफ रिच, डिमांड फॉर कमोडिटीज प्रेफर्ड बाय द रिच, तो डिमांड ऑफ द कमोडिटीज कौन सी है, दैट इज द लग्जरी गुड्स, द डिमांड फॉर द लग्जरी गुड्स विल बी हायर। अगर if the distribution of income and wealth is more in favor of the poor, then the demand of the commodities preferred by the poor, that is the necessary goods, will be higher. Third point is climate. Climate also changes the market demand. बहुत फर्क पड़ता है climate का। अभी जैसे अभी धीरे धीरे अब सर्दियां आने शुरू हो जाएंगी, जैसे जैसे सर्दियां आती जाएंगी हम सबके वुलन कपड़े निकलने लगेंगे, जिनके वुलन कपड़े छोटे हो गए होंगे वो वुलन कपड़े खरीदने जाएंगे बाजार में, तो अपने आप में वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही सीजन चेंज हुआ, यानी कि क्लाइमेट चेंज हुआ, मार्केट की डिमांड यानी कि डिमांड पर चेंजेस आने लगे, मार्केट में भी चेंजेस आने लगेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा वुलन कपड़े खरीदने लगेंगे। समर्स होते हैं तो कॉटन क्लोथ्स लेते हैं, विंटर्स हो जाते हैं तो वुलन क्लोथ्स लेते हैं। या हमने एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि ज़्यादातर समर सीजन्स में लोग आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक इन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर बारिश शुरू हो जाएगी, जैसे बीच में बारिश आई थी, तो बारिश के मौसम में डिमांड फॉर अम्ब्रेला, रेन कोट ये बढ़ जाता है। तो क्लाइमेट भी अफेक्ट करती है मार्केट डिमांड में। मार्केट डिमांड क्योंकि मैक्सिमम पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन परचेजिंग ऑफ आइसक्रीम्स when it is summers, maximum people do purchase umbrella and raincoat when it is rainy season, and maximum people do purchase woolen clothes in winter seasons. So these are factors affecting market demand. So we have now seen that how we have studied all the things, that is the market demand, the individual demand. So just briefing it now, because I have told you when you will be able completing this chapter, you will be able to fulfill your targets, that is the objectives what we have laid out for the chapter. And the objectives of the chapters were, that is objectives I am showing you once again. So this is what we have to complete, that is the concepts of demand, and in concepts of demand you have seen that we have done the demand definition. In demand definition we have taken that the demand is based on, that is your price of a commodity, that is your choice, that is your desires, your liking, needs. So it is your income, price of a commodity, then it is your wants, and it should be at a particular time, that is the quantity, price, and at a time. So the demand is exactly what is that demand? That is the wants, desire, or the needs which is fulfilled by your, that is the price of the commodity, and
at a given time. So we have already done that. Now, how to differentiate between an individual demand and a market demand of a commodity? That is how to differentiate it. So I told you what is individual demand. So individual demand is the demand of an individual buyer. अगर एक इंडिविजुअल बायर यानी कि मैं अपने घर का सामान लाती हूँ तो मैं कौन हूँ? एक इंडिविजुअल बायर हूँ। तो मैं अपने घर के सामान में चावल ला रही हूँ, दाल ला रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक ला रही हूँ या सर्फ ला रही हूँ, शैम्पू ला रही हूँ, तो ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। क्यों? क्योंकि मैं अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतनी ही क्वांटिटी खरीदूंगी जितना मुझे एक महीने में चाहिए। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? दैट इज द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल बायर। अब इन्हीं इंडिविजुअल बायर्स को जोड़ लें। जैसे अब अगर जैसे मैं दुकान पर गई हूँ, मैंने भी शैम्पू खरीदा है, 3-4 लोग भी आ गए, उन्होंने भी शैम्पू खरीदा है, तो हम सारे लोग मिलकर, मतलब हम इंडिविजुअल बायर मिलकर अगर 3 लोग हैं तो तीनों ने क्या करा? 3 शैम्पू परचेज करे। पहला अगर मैं गई थी तो एक ही शैम्पू बिक रहा था, लेकिन मार्केट डिमांड क्रिएट कैसे हुई? क्योंकि और 2 इंडिविजुअल बायर आ गए तो मिलकर तीन डिमांड हो गई, यानी कि 3 शैम्पू की बोतल बिकेंगी, तो अपने आप में एडिशन हो जाती है। तो मार्केट डिमांड क्या है? दैट इज द एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल बायर्स। जब कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, मार्केट डिमांड को समझते हैं कि डिमांड ऑफ द मार्केट है, तो वो मैक्रो कंसेप्ट है, वो अलग है, वो है एग्रीगेट डिमांड, वो है टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, यहाँ पर एक ही गुड की डिमांड, यानी कि इट इज अ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी परचेज्ड बाय इंडिविजुअल बायर्स और उनका एडिशन। सो इट इज when I use the word total, so it is total means it is the addition of the demand of individual buyers. Factors affecting demand, we have already done factors affecting demand. So we have done in 2 types. We have done factor affecting demand of individuals also, we have done the factors affecting market demand also. Individual demand is affected by the price of the commodity, the price of the related commodities, the income of a consumer, and the taste and preferences. First is the price of the commodity. I told you it is inversely related. As the price increases, demand decreases. So it is inversely related. Price of the related commodities, we have studied substitute goods and complementary goods. Substitute goods, they have the direct relationship, and complementary goods, they have inverse relationship. So substitute goods, we have taken the example of tea and coffee, and in complementary goods, we have taken the example of car and petrol. Next comes income. इनकम से वैसे तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि व्हेन एवर द इनकम विल इंक्रीज द डिमांड विल इंक्रीज ऑफ अ कंज्यूमर। हम सबकी डिमांड बढ़ जाती है जब भी इनकम बढ़ती है, लेकिन हमने उसमें भी 2 गुड्स के लिए पढ़ा है, एक है नॉर्मल गुड्स, एक है इंफीरियर गुड्स। अगर इनकम के बढ़ने से जिस भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल गुड, लेकिन इनकम के बढ़ने से जिस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है उसे हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स। यानी कि जैसे पुराने ज़माने में लोग गेहूं क्योंकि महंगे हुआ करते थे इसलिए बाजरा ज्वार खाया करते थे, लेकिन अगर तनख्वाह बढ़ जाएगी तो वो क्या करेंगे? ज्वार और बाजरा छोड़कर गेहूं खाने लगेंगे, तो उनकी डिमांड चेंज हो गई। तो डिमांड क्या है कि डिमांड विल इंक्रीज, और किसकी इंक्रीज हो गई? नॉर्मल गुड की, यानी कि व्हीट की, इन कंपैरिजन टू द इंफीरियर गुड्स। हमने किसने ले लिया? ज्वार और बाजरा को। तो मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताया कि अगर जब भी मेरी इनकम बढ़ने से किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसे नॉर्मल गुड्स कहते हैं, और जिसकी भी डिमांड कम हो जाती है उसे हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि ज़्यादातर जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें ज़्यादातर ब्रांडेड चीज़ें नहीं दिलाते। क्यों? क्योंकि छोटे हैं, एक्सपेंसिव होते हैं ब्रांडेड, फिर वो चीज़ें छोटी हो जाएंगी तो फिर किसके काम आएंगी? तो जनरली वो लोकल चीज़ें पहनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम कमाने लगते हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ जाती है, तो हम ब्रांड्स पे आ जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जिन चीज़ों पे हम आ रहे हैं वो सब नॉर्मल गुड्स के अंदर है। जिन चीज़ों को भी मैं खरीद रही हूँ वो सब नॉर्मल है, लेकिन जिन चीज़ों को मैं छोड़ कर आई हूँ उन कमोडिटीज़ को खरीदने के लिए वो अपने आप में इंफीरियर गुड्स है। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है?
लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, है ना, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हम कांस्टेंट रख रहे हैं? हम 4 ही फैक्टर्स पढ़ रहे थे यहाँ पर, पी एन, पी आर, वाई, टी। तो कौन से फैक्टर्स कांस्टेंट माने हमने? हमने माने कांस्टेंट है, दैट इज पी आर, वाई और टी को कांस्टेंट माना, कि जब भी कीमतें बढ़ेंगी डिमांड कम होगी। लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब भी कीमतें बढ़ेंगी डिमांड कम होगी। सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट when the price rises the demand falls, that is demand is less, and when the prices when the demand rises demand are less, and when the price falls the demand are more. That means there is an inverse relationship between the price and quantity demanded, because you need establishment between, that is the relationship. So what we have established, the relationship established between the price and quantity demand is inverse. Then we have studied how to construct an individual demand curve. हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से। हम पहले शेड्यूल बनाते हैं। हम शेड्यूल कैसे बना रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड को ही अगर हम टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करें, जैसे मैं कह रही हूँ कि कीमतों के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड घट जाती है, तो अगर मैं इसे टेबल पे दिखाऊं तो टेबल पे कैसे बना के दिखाऊंगी? जब भी मैं टेबल पे प्राइस, एक तरफ प्राइस लिखूंगी, एक तरफ क्वांटिटी डिमांड लिखूंगी, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे क्वांटिटी डिमांड घटती चली जाएगी। उसे हम कहते हैं अपने आप में, है ना, डिमांड शेड्यूल। और उसी डिमांड शेड्यूल को अगर मैं प्लॉट कर दूं, प्लॉट कर सकते हैं हम, एक्स एक्सिस पे आप ले लीजिए डिमांड और क्वांटिटी डिमांड, और वाई एक्सिस पे ले लीजिए प्राइस। आप जब प्लॉट करोगे, पॉइंट्स ज्वाइन करोगे, तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग करवाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और वही हमने शेप भी पढ़ा है, इंटरप्रेट द शेप ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व की शेप कैसी आई? दैट इज द शेप इज हियर, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वैसे हम आपके कोर्स में ज़्यादातर हम बच्चों को कन्वीनियंट उसमें पढ़ाने के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन इंडिविजुअल डिमांड कर्व पढ़ाते हैं। हमेशा हम इसे इंडिविजुअल जब भी पढ़ाएंगे हम डिमांड कर्व बच्चों को 9, 10, 11, 12 के लेवल पर, तो जनरली हम इसे पढ़ाते हैं स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने आपको डिमांड कर्व दिखाई, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसे थोड़े से हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो ये अपने आप में इंडिफरेंस कर्व के नाम से पढ़ते हैं। शेप इसकी इंडिफरेंस कर्व जैसी होती है, लेकिन हमने क्योंकि अभी सिलेबस के हिसाब से आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम इसे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व पढ़ते। सो दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। उसी तरह से हम मार्केट डिमांड भी पढ़कर आए हैं, मार्केट डिमांड के फैक्टर्स भी पढ़कर आए हैं, लेकिन आपके कोर्स में मार्केट डिमांड के कर्व्स एंड शेड्यूल्स नहीं थे। वी कैन मेक द कर्व्स एंड शेड्यूल्स फॉर द मार्केट डिमांड ऑल्सो, कि मार्केट डिमांड में भी हमने शेड्यूल तो आपको दिखाया ही है कि इन हमने प्राइस तो कांस्टेंट रखी, मतलब कांस्टेंट इन द सेंस कि प्राइस कॉमन है बायर ए के लिए भी, बायर बी के लिए भी, बायर सी के लिए भी, और उन ए बी सी को जोड़ लो तो मार्केट डिमांड शेड्यूल आ जाता है। और अगर मैं चाहूँ तो उसको भी प्लॉट कर सकते हैं, और उसको प्लॉट करने के बाद बन जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। तो मैंने आपके सारे ऑब्जेक्टिव आज क्लियर करा दिए। सो दिस इज द चैप्टर व्हाट वी हैव डन एज डिमांड। थैंक यू एवरीवन।